Hello dear learners, how are you all? I hope you all are very good. Today students, we are going to start the very first chapter of class 7 science, that is about nutrition in plants. So student, what is nutrition? Nutrition is the process of taking in food inside the body and its utilization by the body for the growth and maintenance of it. Alright, so in this session, we will learn this very essential life process known as nutrition, which takes place in plants. Alright, so now let's start the chapter. See, each living organism requires to carry out basic processes such as reproduction, respiration, nutrition, growth, etc. to maintain life. And for carrying out all the life processes, each living organism needs a daily supply of energy which is provided by the food consumed by them. What they're saying students कि हर एक living organism को कुछ basic processes को carry out करना ज़रूरी है, जैसे कि reproduction, respiration, nutrition, growth, etc. so that उनकी life maintain रहे. ठीक है, एंड इन सभी लाइफ प्रोसेसेस को कैरी आउट करने के लिए हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक डेली सप्लाई ऑफ एनर्जी भी चाहिए जो कि उन्हें उस फूड से मिलती है जो वो कंज्यूम करते हैं. सो बेसिकली फूड के अंदर ऐसे सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जो कि बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं एंड दो सब्सटेंसेस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. ऑलराइट, नाउ व्हाट इज न्यूट्रिशन? सो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म के थ्रू फूड का इनटेक करना एंड बॉडी फिर उस फूड को जो यूटिलाइज करती है, दैट प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रिशन. बेसिकली टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, दैट इज ऑटोट्रॉफिक एंड द अदर वन इज हेटेरोट्रॉफिक. वी विल टॉक अबाउट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फर्स्ट ऑफ ऑल. सी, ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफोस मीन्स नरिशमेंट. सो इस तरीके से वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स. ऑलराइट, एंड उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स. दिस ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड इन द green plants. Means green plants are able to prepare their own food. Alright? They prepare their food with the help of carbon dioxide and water which is present in their surroundings. So like this, the green plants prepare the food through a process known as photosynthesis. यानी कि green plants autotrophs हैं, उनमें autotrophic mode of nutrition carry out होता है and क्योंकि वो अपना food खुद prepare कर सकते हैं, but वो process which is known as photosynthesis. Alright? So photosynthesis एक process है जहाँ पे carbon dioxide and water which is present in the surrounding, इन सबको as a raw material use करके green plants अपना food prepare करते हैं. Along with that, they have a green pigment also, which is called chlorophyll. And chlorophyll क्या करता है? Plants को food prepare करने में help करता है in the presence of sunlight. Second, we have heterotrophic nutrition, where heteros means other and trophos means nutrition. So इस तरीके से heterotrophic means what? दूसरे organism से nutrition को obtain करना. So the plants, ऐसे plants जिनमें chlorophyll present नहीं होता, and animals which do not possess chlorophyll, they cannot synthesize their own food. ये अपना food खुद prepare नहीं कर सकते हैं and इसीलिए इन्हें other sources of food की requirement है to survive. ये organism plants के ऊपर dependent होते हैं directly और indirectly. कुछ आपके plants को directly consume कर लेते हैं, whereas दूसरे organism plants को खाते हैं. ऐसे organisms को खाते हैं जो कि plants को खाते हैं. Now, autotrophic mode of nutrition, so as I told you कि plants अपना food prepare कर सकते हैं एक green pigment की help से, ठीक है, जो कि उनकी leaves में present होता है and that pigment is known as chlorophyll. And this process of synthesizing food by the green plant is called photosynthesis. Alright? चलो. So photosynthesis क्या है? Photosynthesis, let's see. So plants की जो leaves होती हैं, they are rich in chloroplast. ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोफिल जो कि सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है और इसके बाद फूड प्रिपेयर किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की हेल्प से. सो द प्रोसेस जहाँ पे ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करेंगे, एनर्जी खुद प्रिपेयर करेंगे, क्या? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का यूज करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. दिस होल प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. अब इस पूरे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को एक इक्वेशन के थ्रू वी कैन रिप्रेजेंट, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल विल गिव यू ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन. ठीक है, एक्चुअल में क्लोरोफिल के पास टेंडेंसी होती है, हाई टेंडेंसी होती है कि वो सनलाइट को ट्रैप कर सकता है
एंड फिर ट्रैप्ड सोलर एनर्जी के थ्रू जो वाटर प्लांट्स की रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं, है ना, उस वाटर को स्प्लिट किया जाता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो कि लीव्स में टिनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा, उसके थ्रू एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया जाता है बाय द स्टोमेटल पोर्स, है ना, एंड कार्बन डाइऑक्साइड फिर रिड्यूस हो जाती है बाय द हाइड्रोजन टू फॉर्म ग्लूकोज। ग्लूकोज फिर उसके बाद क्या करता है, ग्लूकोज के अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर होती है। सो बेसिकली द फूड और द ग्लूकोज जो कि लीव्स ने प्रिपेयर किया वो एक सिंपल शुगर की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, दैट इज कॉल्ड ग्लूकोज। एंड फिर इस ग्लूकोज को प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक सेंड किया जाता है। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगी वो एक अनदर फूड में कन्वर्ट हो जाती है विच इज कॉल्ड स्टार्च, एंड ये स्टार्च हमारे प्लांट्स की लीव्स में स्टोर्ड होता है। ग्लूकोज एंड स्टार्च आपके एक कैटेगरी ऑफ फूड को बिलोंग करते हैं विच आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। एंड देन जो ऑक्सीजन है वो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होती है फ्रॉम द बॉडी ऑफ प्लांट। सो बेसिकली ये प्रोसेस जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इसे कहा जाता है। एंड यहाँ पे जो लीव्स इस प्रोसेस को कैरी आउट कर रही हैं, द लीव्स आर नोन एज फूड फैक्ट्रीज और द किचन ऑफ द प्लांट। ऑलराइट, now the materials which are required for the photosynthesis, so that is number 1 water and minerals। ठीक है, तो प्लांट्स की रूट्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल से विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर्स। प्लांट्स में टिश्यूज प्रेजेंट होता है जाइलम, जिसके थ्रू मिनरल्स एंड वाटर रूट से मूव करती हैं टुवर्ड्स अपवर्ड्स टू द लीव्स थ्रू स्टेम एंड ब्रांचेस। सेकेंड वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है जो कि एयर में प्रेजेंट है, लीफ के अंदर एंटर करती है through small openings on the surface of the leaves, and in openings को we call stomata। Each stoma, हर एक स्टोमा 2 किडनी बीन शेप गार्ड सेल से सराउंडेड होता है, एंड गार्ड सेल्स जो है स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं। ऑलराइट, चलो थर्ड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है जो कि सेल ऑर्गेनेलीज में प्रेजेंट होता है, दे आर कॉल्ड दैट इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टेड्स। सो प्लांट्स का जो ग्रीन कलर है वो क्लोरोफिल की ही प्रेजेंस की वजह से है। क्लोरोफिल मोस्टली जो प्लांट्स की ग्रीन लीव्स होती हैं वहां प्रेजेंट होता है। सनलाइट फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में ही हो सकता है, बिकॉज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है ऑफ द फूड। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट वी हैव इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो सभी एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस फूड के ऊपर डिपेंडेंट हैं जो कि प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं। सो दस इन द एब्सेंस ऑफ प्लांट देयर वुड बी नो एनिमल्स और लिविंग बीइंग्स। सेकेंडली फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन के बैलेंस को भी मेंटेन करती है इन द एनवायरनमेंट। So thus you can't imagine any life or survival in the absence of plant. And photosynthesis also enables the green plants to make their own food. ठीक है, अगर photosynthesis process नहीं होगा तो green plants नहीं होंगे, and then there would be no life possible on the earth. Next we come to heterotrophic mode of nutrition in plants. See, there are some plants जिनमें chlorophyll present नहीं होता and therefore they cannot prepare their own food. सो अब ये प्लांट जो है किसी अदर प्लांट के ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है अपने नरिशमेंट के लिए, एंड ऐसे प्लांट्स को कहा जाता है कि इनके अंदर हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैरी आउट होता है, एंड दीज प्लांट्स आर देमसेल्व्स नोन एज हेट्रोट्रॉफ्स। अब हेट्रोट्रॉफ्स को भी फर्दर कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। नंबर 1 भी आप पैरासिटिक न्यूट्रिशन। सो कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अदर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर देयर न्यूट्रिशन। सो इसीलिए एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहाँ पे ऑर्गेनिज्म अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से न्यूट्रिशन ड्राइव करता है उसे बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल, वी हैव एन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड कस्क्यूटा, इसको अपना फूड मिलता है एक पैरासाइट से, एंड जो ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी से ये फूड ऑब्टेन करता है दैट इज कॉल्ड होस्ट। अब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स। कुछ पैरासाइट्स ऐसे हैं जो पार्शियली अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर देयर न्यूट्रिशन, तो उन्हें हम बोलेंगे पार्शियल पैरासाइट्स, एग्जाम्पल मिसिल्टो। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो क्या पूरी तरीके से अनदर ऑर्गेनिज्म के ही ऊपर डिपेंडेंट है अपने न्यूट्रिशन के लिए, सो देयरफॉर दे आर कॉल्ड टोटल पैरासाइट, फॉर एग्जांपल कस्क्यूटा एंड डॉटर प्लांट। ऑलराइट, देन नेक्स्ट वी हैव सेप्रोट्रॉफिक। सो एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहाँ पे ऑर्गेनिज्म अपना फूड डेड एंड डिकेइंग मैटर जो होता है प्लांट्स या एनिमल्स का उससे ड्राइव करता है, दैट इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन।
सो देयरफॉर वो ऑर्गेनिज्म जो किसी भी डेड या डिकेइंग प्लांट या एनिमल के ऊपर डिपेंडेंट है फूड के लिए, उन्हें हम बोलेंगे सेप्रोट्रॉफ. एग्जांपल्स वी हैव फंगाई, मोल्ड, बैक्टीरिया, मशरूम्स एक्सेट्रा. देन वी हैव इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. कुछ ग्रीन प्लांट्स हैं जो अपना नरिशमेंट पार्टली सॉइल से एंड एटमॉस्फेयर से ड्राइव करते हैं एंड पार्टली फ्रॉम द स्मॉल इंसेक्ट्स. सो देयरफॉर दे आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जनरली ग्रीन प्लांट्स होते हैं. ये अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं बट दे रिक्वायर नाइट्रोजन जो उन्हें अपने सराउंडिंग से नहीं मिलती. इसीलिए इंसेक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए. Most common example we have is of pitcher plant, which is an insectivorous plant. You could say this is the pitcher plant. So pitcher plant में क्या होता है, लीफ जो है इनकी ये एक पिक्चर जैसा स्ट्रक्चर बना लेती हैं. लीफ की एपेक्स मॉडिफाइड होती है इनटू अ लिड जो कि पिक्चर के माउथ को ओपन या क्लोज कर सकती है. उसके अलावा हेयर प्रेजेंट होते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में इनसाइड द पिक्चर. जब एक इंसेक्ट इस पिक्चर के अंदर जाता है लिड क्लोज हो जाती है. इंसेक्ट पिक्चर के अंदर जो हेयर प्रेजेंट है उसमें ट्रैप हो जाता है और इसके बाद इस पिक्चर के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होंगे जिसकी वजह से वो इंसेक्ट अंदर डाइजेस्ट हो जाएगा. ऑलराइट, चलो देन वी हैव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप और सिम्बाइसिस. सिम्बाइसिस मींस व्हाट, एक म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल और ग्रुप. सो इसीलिए एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने फूड के फुलफिलमेंट के लिए, दैट इज नोन एज सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन. इफ यू टॉक अबाउट लिचेस, तो लिचेस आपके मोस्ट कॉमन एग्जांपल है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन का जो कि दो डिस्टिंक्ट ऑर्गेनिज्म से बना है, नेमली एल्गी एंड फंगाई. एक साथ रहते हैं, एक साथ वर्क करते हैं. एल्गी में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है इसलिए वो फूड प्रिपेयर कर पाता है. फूड के लिए उन्हें वाटर एंड मिनरल्स रिक्वायर्ड होते हैं जो कि फंगाई प्रोवाइड करता है. एंड इन रिटर्न फंगाई उस फूड को शेयर करता है जो कि एल्गी ने प्रिपेयर किया. सो इस तरीके से जो एसोसिएशन है इट मेक्स देम लुक एज इफ दे आर अ सिंगल ऑर्गेनिज्म. जनरली आपके ट्री ट्रंक्स पे होते हैं जहाँ पे एल्गी कैन नॉट गेट वाटर. ऑलराइट, चलो. So that's all for the chapter which is completed, and I hope that you must have understood the different modes of nutrition which is carried out in the plants. Now let's meet very soon in the next session with a new topic. Till then keep learning well and thanks to all.